Current Affairs Question Bank from June 1st to June 13, 2020 for UPSC Civil Services Preliminary Exam, State PSC exams and all other competitive exams. These questions are very important for all the competitive exams. We covered only current affair MCQs. Okay. Please subscribe the channel if you are not subscribed yet. Thank you. Let's begin. First question. National Geographic Channel on collaboration with Drinking Water Ministry has released a film about which government scheme? Okay. Swachh Bharat Mission, Secure Himalaya Project, Green Skill Development Program and National Clean Air Program. So recently the National Geographic Channel has released a film titled Swachh Bharat, India's Sanitary Revolution. Swachh Bharat, India's Sanitary Revolution, in collaboration with the Union Ministry of Drinking Water and Sanitation. The film was recently premiered at a special screening for the Indian President and also on the Net Geo channel. The film is also made available on the YouTube channel also of Swachh Bharat Mission Gramin. Many ambassadors of cleanliness share their common connection with the scheme in the film. Okay, so आपके समझ में आ गया होगा कि ये स्वच्छ भारत मिशन इज द राइट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिलीज्ड स्वच्छ भारत मिशन नेशनल जियोग्राफिकल चैनल के कोलैबोरेशन के साथ ये रिलीज हुआ है. आंसर इज ए, स्वच्छ भारत मिशन. नेक्स्ट, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड ये न्यू वोटिंग प्रोसीजर इन्वॉल्विंग सीक्रेट बैलेट फॉर इट्स इलेक्शंस amidst COVID-19 pandemic. So अभी रिसेंटली क्या है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम UNGA बोलते हैं, हैज रिसेंटली अडॉप्टेड ए न्यू वोटिंग प्रोसीजर फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. This change is due to the restrictions for large gathering and to ensure social distancing during the COVID-19 pandemic. Usually the assembly meets in a horseshoe-shaped assembly chamber at UN headquarters, but now the ambassadors from 193 UN member nations will cast secret ballots at predetermined place and time slots. अभी क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस में जो अस्थायी मेंबर होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं, एक नॉन परमानेंट होते हैं. तो जो नॉन परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन हो रहे हैं. इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. उम्मीद है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा इस बार. तो उस कोविड-19 की वजह से ये सीक्रेट बैलेट का यूनाइटेड नेशंस ने किया है, जनरल असेंबली ने, UNGA ने. तो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which country has terminated its relationship with WHO over its handling of the coronavirus pandemic. ये काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में चल रहा है. इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म हमको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे. अभी WHO ने क्या है कि इस पे पार्शियलिटी किया, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने एलिगेशन लगाया WHO पे कि लोगों को, पूरे वर्ल्ड को WHO ने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया है चाइना के प्रेशर में आके. That's why the President of United States, Donald Trump, has recently announced that United States is terminating its relationship with World Health Organization over its handling of the coronavirus. And the President Trump is blaming WHO and China for the deaths and damages caused by the pandemic across the world. Okay, so that's why the President also said that fund provided by the USA to WHO will be redirected to other global public health needs. He also issued direction to deny entry to certain Chinese nationals and tightened
रेगुलेशन अगेंस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। WHO का तो फंड बंद कर दिया, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया अमेरिका में, और जो चाइनीज कंपनी थी उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। सो राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन ने अभी WHO का फंड टर्मिनेट कर दी रिलेशनशिप की, हम नहीं रखेंगे रिश्ता। नेक्स्ट, विच स्टेट इज टू लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू डेवलप 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स। ओके, सो विच स्टेट 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? उत्तर प्रदेश, यूपी। As per the recent announcement of the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, the state is developed 800 kilometer roads as herbal roads in the state. The herbal roads will have medicinal tree on the both sides, including peepal, neem, sejam, and other important herbal trees. The state's public work department, जिस PWD, will implement the project and rainwater recharging system on the roads. तो यूपी में किया है ये हर्बल रोड्स, 800 किलोमीटर पे ये हर्बल रोड बनाएंगे, रोड के दोनों साइड पे पेड़ वगैरह लगाएंगे, उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने किसको नॉमिनेट किया है? बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा, बीसीसीआई हैज नॉमिनेटेड इंडियन क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अदर स्टार्स इंक्लूडिंग ईशांत शर्मा, शिखर धवन एंड दीप्ति यादव हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द बीसीसीआई फॉर द अर्जुन अवार्ड। The period of consideration for the award is between January 1, 2016 to December 31st, 2019. Okay. Rohit Sharma has been named the ICC ODI Cricketer of the Year 2019 also. So BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा का नाम दिया है, शिखर धवन का नाम दिया है अर्जुन अवार्ड के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा नॉमिनेट किया। Which consumer electronic company has partnered with Indian startup incubator T-Hub to support startup ecosystem in India? Okay, तो इंडियन स्टार्टअप ये जो T-Hub है उसके साथ में किस कंपनी ने, किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने पार्टिसिपेशन किया है, अभी पार्टनरशिप की है? तो ये किया है ओप्पो मोबाइल ने, ओप्पो ने। Oppo B is the right answer. Okay. Chinese mobile communication cum consumer electronic company Oppo has recently partnered with Indian startup incubator T-Hub to support startup ecosystem in India. ये चाइनीज पीछा छोड़ेंगे नहीं, चाइनीज का काफी है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, चाइना अभी टॉप पे ही है। सो ओप्पो ने पार्टनरशिप की है T-Hub के साथ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसके बारे में है। सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, which state owned organization has developed a multi-purpose disinfection unit named अल्ट्रा स्वच्छ? अल्ट्रा स्वच्छ की बात हो रही है। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, जिनको हम INMAS भी बोलते हैं, द डेली बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has developed a disinfection unit named Ultra Swachh. What is Ultra Swachh? It is a multi-purpose unit
which can be used to disinfect a wide range of objects and material including personal protective equipment called PPEs, fabric among others. The system is compliant with international standard of personal and environmental safety. Okay, और ये क्यों है? द सिस्टम विल बी अवेलेबल इन टू वेरिएंट्स, नेमली कोरोनेटेड स्पेस एंड ट्रिनिटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्वच्छ है जो DRDO ने बनाया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द रिसेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाइड फॉर 2020-2021 कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन कैश डिपॉजिट अबव विच लिमिट। यह भी इनकम टैक्स ने जो ये बनाया है ITR रिफॉर्म्स के फॉर्म्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 फॉर इंडिविजुअल, प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉर्म सेपरेट्स कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन कैश डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 1 करोड़, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेवल एक्सीडिंग 2 लाख एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज एक्सीडिंग 1 लाख। तो ये अलग ही कर दिया कि अब कोई इनकम टैक्स 1 करोड़ से ऊपर कैश जमा करवा रहा है, कैश की बात हो रही है, कैश डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर, और कोई जिसके फॉरेन बाहर घूमने के ट्रेवल्स 2 लाख से ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज़्यादा का बिल आ रहा है, तो उसको ये ऑटोमेटिक सेपरेट लिस्ट में डाल देगा, अलग ही डिटेक्ट करके उनकी अलग ही लिस्ट बन जाएगी। दैट्स वाई 1 करोड़ इज कैश। सी इज द राइट आंसर। Which union ministry launched the schemes named PLI, SPECS and EMC 2.0? ओके, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये PLI क्या है। PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सेकेंड इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स के प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्कीम है ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड थर्ड इज EMC 2.0, इट इज मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम। ठीक है, तो ये लॉन्च किया अभी। This will generate manufacturing of electronics component worth Rs 10 लाख करोड़ by 2025। ये इंडिया में 3 लॉन्च किया है। आप समझ गए होंगे कि तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद जी, यूनियन मिनिस्टर है। नेक्स्ट, who are the beneficiaries of the newly launched scheme PM स्वनिधि? PM स्वनिधि ये है जो इसके बेनिफिशरी कौन है? इसके बेनिफिशरीज हैं स्ट्रीट वेंडर्स। सी इज द राइट आंसर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम नेम्ड PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ओके, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ये याद रखना आप, इसकी फुल फॉर्म है जो, इट इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। और क्यों है? Housing and Urban Affairs Ministry launched this scheme which aims to provide affordable loans to street vendors. The duration of scheme is till March 2020 and is expected to benefit over 50 lakh street vendors. The vendors can avail a working capital loan of Rs 10,000 which is repayable in monthly installment in 1 year tenure. आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने जो देश को संबोधन किया था, जो नेशन को एड्रेस किया था, उसमें जो बताया था कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे, रेडी वाले, ठेले वाले ये हैं इनके लिए, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसमें 10,000 रुपये का लोन दे रहा है इन रेडी वाले जो ठेले वाले हैं उनको, कि अपना वापस से बिजनेस चालू कर सके, कोई ठेला लगा सके कहीं।
What is the name of the technology based platform launched by the Indian Prime Minister for MSMEs? MSMEs के लिए ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक लॉन्च किया है नया टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ वेरी फेमस। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैंपियंस आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैंपियंस? क्रिएटिव एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक एक वर्ड का मीनिंग है इसमें। चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये आप याद करना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन है जो, ठीक है। तो एमएसएमई के लिए ये प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। नेक्स्ट, which subordinate office of agriculture ministry recommends the change in minimum support price to union cabinet? जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका कौन सा सबऑर्डिनेट ऑफिस है जो एमएसपी को सपोर्ट करेगा? चेंज इन एमएसपी टू द यूनियन कैबिनेट। ओके, सो ये सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये सबऑर्डिनेट करेगा, ये असिस्ट करेगा, ये हेल्प करेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की टू रिकमेंड द चेंज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू यूनियन कैबिनेट। ओके, दिस वन इज द राइट आंसर। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन जून 2? जून 2 को कौन से स्टेट का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं? ये 2 जून को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनका बाइफर्केशन हुआ था 2014 में अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। In 2014, Telangana was carved out of the state of Andhra Pradesh as the 29th state of India under the Andhra Pradesh Reorganization Act. And the capital of the state is Hyderabad and its population is about 3.5 crore approximate. But अभी 29 स्टेट नहीं है। ओके, उस टाइम का बता रहा हूँ, 2014 में 29 बना था। Telangana is the right answer. Next, which country has announced its 11th outbreak of Ebola virus disease? Ebola virus disease ये काफ़ी चला है, काफ़ी फैला है। The government of Democratic Republic of the Congo recently announced that it has witnessed a new outbreak of Ebola virus disease. Okay, so correct answer is डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, इक्वेटर से भी कनेक्टेड है। ये WHO का भी रोल है, फिर नील नदी भी आ जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, इसकी ज्योग्राफी रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, और इबोला वायरस की भी पढ़ना आप थोड़ा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए मंथ लॉन्ग ड्राइव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक अंडर मिशन फतेह? मिशन फतेह नाम से लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये अप्रैल महीने में लॉन्च किया था स्टेट ऑफ पंजाब ने। एन ऑपरेशन टू कंटेन द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 नेम्ड मिशन फतेह। जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया है मिशन फतेह। ओके, ये ध्यान रखना आप, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, CTAP। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। CTAP, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, CTAP, ये किया है अभी WHO ने।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है न्यू इनिशिएटिव सीटैप अलॉन्ग विथ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के साथ में किया है। द पूल वाज इनिशियली प्रपोज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका कार्लोस अल्वाराडो। As of now, 30 countries and several global partners have joined the initiative. The pool seeks to make all vaccines, tests, treatments, and other health technologies developed to fight COVID-19 accessible to all. इसका मतलब ये है, कोस्टा रिका के साथ WHO ने साइन किया था शुरू में, अभी काफ़ी कंट्रीज़ ने और इसको ज्वाइन कर लिया कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड जिसके पास भी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो टेस्ट हो, वैक्सीन हो, ट्रीटमेंट हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, तो हम सब एक दूसरे से एक्सेस करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, साझा करेंगे। नेक्स्ट, which state has made Aadhaar card mandatory for services like salons and beauty parlors to facilitate contact tracing? कॉन्टैक्ट ट्रेस हो सके कि भाई आप एक सैलून पे गए हैं, अब वहाँ को इन्फेक्टेड हो गया तो उसको कैसे ढूंढोगे, क्योंकि वो तो सैलून पे अपना काम करवा के चला गया। तो इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आधार कार्ड मैंडेटरी किया था, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने, कि जो भी सैलून से ब्यूटी पार्लर पे सर्विसेज लेगा उसके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। वाई? टू ट्रेस हिम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। तमिलनाडु, ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी आप मंथ का है, जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको फुल मंथ का कवर हो जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विच एसोसिएशन सेलिब्रेटेड इट्स 125th एनुअल सेशन ऑन द थीम ऑफ बिल्डिंग इंडिया फॉर ए न्यू वर्ल्ड, लाइवलीहुड ग्रोथ, ये थीम थी। सो अभी जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनका था 125th एनुअल सेशन, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री ने अभी, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट द 125th एनुअल सेशन ऑफ CII थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और उसकी जो थीम थी एनुअल कॉन्फ्रेंस की, दैट इज बिल्डिंग इंडिया फॉर ए न्यू वर्ल्ड, लाइवलीहुड एंड ग्रोथ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। CII। नेक्स्ट, गूगल्स फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिकेट has been appointed as the board of chairman of which major technology company? किस कंपनी में ये चले गए हैं? अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पहले गूगल में, वो किस कंपनी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने? सो सोशल नेटवर्किंग जायंट ट्विटर हैज रिसेंटली अपॉइंटेड पैट्रिक पिकेट, ए फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट गूगल, एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड. This is the first time in the history of Twitter that an outsider is presiding over the board. Patrick Pichett served as the lead independent director of Twitter since the end of 2018. He is the replace Ovid Kordestani in the leading the directors as chairman. Investors have been urging for appointment outsider. ओके, तो ये पहले ऐसे हैं, आउटसाइडर हैं, बाहर के हैं कहीं, जो ज्वाइन किया है इसलिए चर्चा में है। तो इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया है, पहले गूगल में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, अभी बोर्ड ऑफ चेयरमैन में अपॉइंट हुए हैं, गूगल से ट्विटर ज्वाइन किया है इन्होंने। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? इंडिया ने भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA ज्वाइन किया है, ओके। बायलैटरल समिट हुई थी अभी, फर्स्ट बायलैटरल समिट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच बात भी हुई है, वहाँ पे ये साइन हुआ है MLSA। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, ऑस्ट्रेलिया से।
Which Indian public sector undertaking signed a MOU with Energy Efficiency Service for development of trigeneration projects? ये गेल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। ओके, गेल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। Who is the only Indian to be ranked in the Forbes 2020 list of world's highest paid celebrities? अभी ये फोर्ब्स की कोई लिस्ट आई है जिसमें इंडियन का नेम आया है इस लिस्ट में। सबसे ज़्यादा पेड सेलिब्रिटी कौन है? वो अक्षय कुमार है। ये चैरिटी भी काफ़ी करते हैं और टैक्स भी पूरा दे रहे हैं, अच्छी बात है। Which country is to host 2020 Asian Football Confederation Women's Asia Cup for the first time? फर्स्ट टाइम 2022 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वीमेंस एशिया कप पहली बार, ये कौन करने जा रहा है? ये करने जा रहा है इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। Which Indian state is the Kiladi excavation site located where skeletal remains of an animal have been recently unearthed? Skeletal remains of an animals have been recently unearthed at Mangaluru near Madurai. Under the sixth phase of excavation work at Kiladi site undertaken by the Tamil Nadu State Department of Archaeology. ठीक है, तो ये कहाँ पे मिले हैं ये याद रखना, किलाड़ी एक्सकेवेशन, तमिलनाडु एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये तीन टर्म याद रख लेना। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अंबर नाया रिवर दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? Amber Naya River. Russian President Vladimir Putin declared a state of emergency on Wednesday, अभी 10th June, after 20,000 ton of diesel oil to spilled into the Amber Naya River. Okay, oil is alleged to have come as a result of fuel tank collapse at a power plant near the city. ये बहुत सीरियस इश्यू था, ऑयल लीक हो रहा था, किसी को पता नहीं था, इस नदी तक चला गया था, कोई प्लांट था वहाँ पे पास में तो काफ़ी भीषण डेंजरस था। सो वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको टेक ओवर किया, तुरंत एक्शन लिया है इस पे, इसीलिए न्यूज़ में है अंबर नाया रिवर। ये कहाँ पे है? रशिया में। रशिया इज द करेक्ट आंसर। आई कमिट इज ए न्यू कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? आई कमिट, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर पावर आर के सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है आई कमिट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इनके लिए किया है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, ये आई कमिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सही नहीं है, इसका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ओके, बी इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स? अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन तो पॉलिटी का आ गया, ये करंट अफेयर्स का कहाँ से हुआ? अभी रिसेंटली क्या है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है।
सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL फाइल की है कि भाई इंडिया का नाम चेंज करो, जो लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत, या तो उसको भारत करो या हिंदुस्तान करो। तो उस PIL को है जो चीफ जस्टिस ने उसको सुन के कहा है कि भाई आप है जो गवर्नमेंट को जाके और वहाँ अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट ही इस पे कुछ कर सकता है, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला है, इसलिए टॉपिक चर्चा में है। पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल यही है। जो आर्टिकल 1 है उसमें यही लिख रखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या थी? 2020 की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये हर आदमी का बिजनेस है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। दिस ईयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी डे। ओके, द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट ग्लोबल फूड सेफ्टी अवेयरनेस एंड टू ब्रिंग टूगेदर कंट्रीज, सिविल सोसाइटीज एंड प्राइवेट फर्म्स टू टेक रिक्वायर्ड एक्शन। कोई भूखा नहीं रहे, ठीक है। तो इस साल जो सेकेंड टर्म थी, ये सेकेंड टाइम सेलिब्रेट किया है, तो उसकी ये थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास्ड इन इंडिया? ओके, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास हुआ है इंडिया में 2016 में। 2016 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये रिपीट हो गया शायद। आई कमिट, ये आपको बताया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, द बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, safe online learning in the times of COVID-19 has been prepared by NCERT in collaboration with which global organization? global organization है कोई, उनके साथ में प्रिपेयर की है। तो ये NCERT ने किसके साथ प्रिपेयर की है? NCERT ने प्रिपेयर की है यूनेस्को के साथ। यूनेस्को का आपको पता होगा, यूनेस्को के साथ ह्यूमन राइट रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर RP Nishank launched the information booklet titled Safe Online Learning in the Times of COVID-19. The booklet, which has been jointly developed by NCERT and UNESCO, aims to raise awareness in students and teachers about safe online environment. This has been launched at the backdrop of several children and teachers being actively engaged in digital learning platforms. Okay, ये यूनेस्को के साथ NCERT ने मिलकर ये बुकलेट तैयार किया। Which article of Indian Constitution says India that is भारत shall be? ये भी हो गया, ये रिपीट कैसे होते जा रहे भाई? आर्टिकल फर्स्ट ये आपको बता दिया था। As per the new order of Finance Ministry, all new schemes that have been approved will remain suspended till which date? अच्छा, ये कोविड-19 का ही है, उससे रिलेटेड है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक ऑर्डर निकाला है नया, उसमें जो जितनी भी न्यू स्कीम्स हैं वो सस्पेंड रहेंगी। जो पहले की चल रही स्कीम वो नहीं, जो अभी न्यू स्कीम लॉन्च किया वो सस्पेंड रहेंगी टिल मार्च 31, 2021। 31 मार्च 2021 तक कोई भी जो नई स्कीम लॉन्च की थी वो सस्पेंड रहेंगी जब तक, ठीक है। व्हाट इज द थीम? Who is the chairperson of the task force set up to examine matters regarding health and nutrition of women and child? ये एक टास्क बनाया था
to examine matters regarding health and nutrition of women and child। और ये किसने बनाया था? WCD है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने बनाया था। और उसके चेयरपर्सन कौन थे? उसके चेयरपर्सन थे जया जेटली। जया जेटली जी उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है। who has been named the chairperson of the reconstituted commodity derivatives advisory committee of SEBI। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी सेबी में ये किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड its commodity derivatives advisory committee, reconstituted as per the recent notification 17 member committee would be chaired by retired IAS officer श्री अशोक दालवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें अशोक दालवानी को है जो चेयर्ड किया है इन्होंने, चेयरपर्सन है ये अशोक दालवानी। ओके, याद रखना है। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज प्लेस्ड ओवर $21 million फंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो ये जो G20 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ G20 है, रिसेंटली प्लेस्ड मोर देन $21 billion to fight the coronavirus pandemic. In March 2020, G20 countries injected more than $5 trillion into the global economy to fight the virus and its economic impact across the world. Okay. The member countries also urged the World Bank and IMF to support the vulnerable countries। इन्होंने G20 ने वर्ल्ड बैंक और IMF को भी कहा है कि जिन कंट्रीज के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है आप उनकी हेल्प कीजिए। जॉय बिडेन who was seen in news recently is the nominee for which country's presidential election। Okay, जॉय बिडेन ये काफ़ी चर्चा में अभी नाम। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जॉय बिडेन हैज़ फॉर्मली ऑब्टेन्ड द नॉमिनेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द अपकमिंग यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। 77-year-old जॉय बिडेन, he served as the 47th US vice president from 2009 to 17 during the presidency of Barack Obama। Okay, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी इलेक्शन है अमेरिका में नवंबर में शायद, तो ये जॉय बिडेन है जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे। राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय तिजानी मोहम्मद बंदे Which global organization is headed by this Tijani Mohammed Bande? United Nations। The President of United Nations General Assembly is Tijani Mohammed Bande। ये याद कर लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई PSC की तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है UN, उसके प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे। ये नाइजीरियन है। ही हैड आल्सो सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, नाइजीरिया के रहने वाले हैं ये जरूर याद रखना। Bagjan oil well of Oil India Limited that was seen in news recently is located in which state? Bagjan
ऑयल वेल, ये तेल का कुआं है, उसका नाम है ये, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में है क्योंकि जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है अपर आसाम रीजन में, अपर आसाम में, वहाँ पे पिछले कई दिनों से वहाँ पे है जो फायर वगैरह हो रहा है, मैसिव फायर हो रहा है ऑयल की वजह से। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहाँ पे लगी हुई है। और एक्चुअली क्या है कि जो बगजान वेल है इज एडजेसेंट टू द रिच बायोडाइवर्सिटी फील्ड डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, एक तो कि ये वो मैचिंग में पूछ लेंगे आपसे भाईजान ये बगजान ऑयल वेल कहाँ पे है, ठीक है, या फिर किस कंपनी से रिलेटेड है ये पूछ लेंगे, किस स्टेट से रिलेटेड है ये पूछ लेगी यूपीएससी। और यूपीएससी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि घुमापुरा के पीछे पूछना है, तो यूपीएससी फिर आपसे सीधा पूछेगी कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये जरूर पूछेगी यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स जो 4 अक्टूबर को होने वाला। आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है ये। आसाम इज द राइट आंसर। विच इंडियन इज द हेड ऑफ द क्रिकेट कमेटी ऑफ आईसीसी। ये अभी बनाया है आईसीसी के जो हेड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अनिल कुंबले को बनाया है, जो पहले इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं, ठीक है। अनिल कुंबले को बनाया आईसीसी का अभी क्रिकेट कमेटी का हेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे WAD 2020। तो जो ये वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे है उसकी थीम थी इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। एक्रेडिशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, ए इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा और मैं आपको बता दूं कि ये एक्रेडिशन क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड एक्रेडिशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th June every year to highlight and promote the role of accreditation in trade and economy। ट्रेड एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, ठीक है। Which sector of people have been recently included in the आयुष्मान भारत स्कीम। ये बहुत चैंपियन स्कीम है, काफ़ी लोगों का इसमें इलाज होता है आयुष्मान भारत में। तो इसमें अभी रिसेंटली किसको ऐड किया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ऐड किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बिहार का रहने वाला है और वो दिल्ली में काम कर रहा है और उसके पास दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है, तो उसको बेचारे को राशन नहीं मिल रहा था अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तब। या चाहे कोई राजस्थान का है उसको गुजरात में नहीं मिल रहा है, कोई कहीं का भी हो दूसरे स्टेट का है उसको माइग्रेंट वर्कर को नहीं मिल रहा था आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट है, तो इसमें माइग्रेंट वर्कर्स को भी ऐड कर लिया। अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है तो जो जहाँ पे है उसको वहीं पे राशन मिल जाएगा, उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूखा नहीं रहेगा कोई। जैसा अभी हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा है, लॉकडाउन में काफ़ी मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब जो जहाँ है उस स्टेट से अपना राशन ले सकते हैं। और ये हम सबका ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, कि जो गरीब हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं हम उनको बताएं कि अब आप जहाँ पे हैं ये कार्ड बनवा लीजिए और जहाँ पे है वहाँ पे भी आपको राशन मिल जाएगा। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अवेयर करें। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच शिप बिल्डर डिलीवर्ड द फास्ट पेट्रोल व्हीकल नेम्ड ICGS कनकलता बरुआ फॉर द कोस्ट गार्ड। ये किससे रिलेटेड है? ओके, तो इंडियाज लीडिंग शिप बिल्डर कोलकाता बेस्ड गार्डन शिप रिसर्च
Garden Reach Shipbuilder and Engineers, Kolkata based Garden Reach Shipbuilders and Engineers has recently delivered the fast petrol vessel and it named ICGS Kanaklata Barua. It is the fifth and final ship in the series of FPV fast petrol vessel for the Indian Coast Guard. This is also the 105th vessel delivered by the GRSE shipyard. ये state owned defense enterprises. Okay. It had earlier delivered vessel named Priyadarshini, ICGS Annie Besant, ICGS Amrit Kaur in the series to the Coast Guard. तो ये जो है ये विजल्स है, पेट्रोल विजल का नेम है और ये किसने डिलीवर्ड किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर जो कोलकाता के हैं. ए इज द राइट आंसर. Which Indian state UT has launched रोजगार सेतु पोर्टल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए रोजगार सेतु ऐप बनाया है. अभी किस गवर्नमेंट ने बनाया है? ये बनाया अभी रिसेंटली रोजगार सेतु माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, MP. एज पर द लेटेस्ट क्वेकरेली Simmons World University Rankings, how many Indian institutions features among the top 200? तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है, ये इसने रैंक रिलीज की है QS ने. इसमें टॉप 200 में इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट है? ओनली 3 यूनिवर्सिटी है. ओके, ये आपको थोड़ा याद रखना है. और 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? एक तो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. इसने टॉप किया MIT ने लगातार 9वीं बार, फॉलोड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑल बीइंग अमेरिकन. ये तीनों अमेरिकन है जिन्होंने टॉप किया है. ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस नेमली IIT बॉम्बे जिसकी रैंक है 172, IISc बेंगलोर 185th रैंक एंड IIT दिल्ली 193rd. ये 3 है, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली. नेक्स्ट, विच कंट्री रिलीज द एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट? ये अभी रिलीज हुई है. किसने रिलीज की है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स releases the annual international religious freedom report in accordance with the International Religious Freedom Act of 1998. The report submitted to US Congress describes the status of religious freedom in every country. It was in news because the report raised concern over the religious freedom of India. The report also mentioned about the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the parliamentary approval of the CAA. ओके, तो ये लोग लिखते रहते हैं, ऐसे बना देते हैं. रिपोर्ट है जो हर कंट्री कुछ न कुछ बना देता है. Which central public sector enterprises partnered with industrial training institutes to train youths in trade and industrial skills? तो ये किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने किया है चालू? ये किया है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने. ये यूथ को ट्रेंड करेंगे, अब इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए यूथ को ट्रेनिंग देंगे. ओके, दिस द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स. Please subscribe the channel. Next video will be coming soon. Thank you. Good luck.